स्टार्टिंग विद द वेरी वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, रैशनल फंक्शन हमको पता है बेसिकली वन पॉलिनोमियल फंक्शन अपॉन अनदर, तो वी हैव टू इंटीग्रेट दिस वन एंड टेल द आंसर. सी अगर ऐसे देखोगे तो ऑब्वियसली डिफिकल्ट लगेगा, स्पेशली इफ यू आर सीइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. बट इफ यू एनालाइज द पैटर्न, एक बारी आपको पैटर्न याद करा दे तो ये क्वेश्चंस हलवा बन जाते हैं. ओके, हाउ? जस्ट वॉच दिस आउट. सो आई हैव डिस्कस्ड फ्यू ऑफ देम पहले भी. क्या करना है, जब भी रैशनल फंक्शन अपॉन रैशनल फंक्शन है, यहां पे अगर पॉलिनोमियल फंक्शन अपॉन पॉलिनोमियल फंक्शन है, मतलब रैशनल फंक्शन गिवन है, तो व्हाट विल यू डू? जो भी ये जिस भी पावर के साथ रेज्ड है, नाउ दिस कुड बी, दिस पावर विच आई एम टॉकिंग ऑफ कुड बी अ होल नंबर, could be a rational number, anything I can get. Okay, but first what we are going to do is whatever is the highest power, तो जो highest है उसको और high ले जाइए. कैसे? Just take that common. So just explaining the denominator here. The numerator stays as it is. Denominator में the highest power is x raised to power 5. Take that common. अंदर बच जाएगा 1 plus 1 upon x square plus 1 upon x raised to power 5 whole cube. When you take this x raised to power 5 outside, this is whole cube. So x raised to power 15 comes out. ठीक है? I am only taking some time to explain it to you. एक बारी you understand the concept, grip आ जाएगी, फिर we are actually going to run in this marathon. So if I take that common, I will get x raised to power 15. Okay. Now when I divide each term of the numerator with this x raised to power 15, what will I get? I will get x raised to power 12 upon 15, so this is minus 3, and the other one is x raised to power 9 minus 15, which is a minus 6. And what do I have in the denominator? Here. Now let's put your integral sign back. Now simply tell me what will you do? I have simply transformed the whole thing into a situation jahan substitution is the easiest thing, right? So now you see this is the function and derivative is right on the top. Okay जी, तो देखो क्या हो रहा है. And don't forget बच्चों this whole cube. Okay, ये whole cube मत भूलना. So I will take 1 plus x raised to power minus 2 plus x raised to power minus 5 as t. Okay, which gives me obviously this thing. यानी कि my function now becomes my integral. इसको मैं I बुलाऊं तो यार क्या बन जाएगा? Minus sign will come out common. Minus t upon t cube. ये तो आई एम श्योर इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो तो सारे ऐसे कर सकते हो, isn't it? Do it and tell me which is the answer, final answer that matches. हाँ जी बच्चों, whole cube लिख दिया है मैंने. I have written whole cube. So what will I get? क्या आएगा बेटा? minus 3 आ रहा है ना, so minus 2 plus minus 3 plus 1, that's minus 2 here and minus 2 here plus c. अब t को डालो, सिंप्लीफाई करो एंड मुझे बताओ which one is the answer. I am waiting for your response. A, are we getting A as the answer? I want to see that in the chat box. Good job. A आएगा बेटा. Just substitute back the value of t and simplify. आप इतना तो कर ही लोगे. तो if you understood the technique, when you see a rational function, whatever is the highest power in the denominator, take that common. This technique works for your CBSE boards questions also, and trust me, these are the questions for JEE mains as well. So if everybody is ready, let's move to the second question and करते जाओ मेरे साथ, मजा आएगा इंटीग्रेशन में.
Okay, so A everyone's getting. चलिए, let's move to question number 2. Very simple, very similar. चलो करो फिर. All right guys, let's roll. ओके चलिए करते हैं इसको फिर से. व्हाट विल आई टेक कॉमन? मुझे पता है इट्स अ रैशनल फंक्शन. यहाँ कांस्टेंट टर्म 1 है, आई मीन डिनोमिनेटर में 1 है, डजंट मैटर, फॉलोज द सेम पैटर्न. हाईएस्ट पावर का कोई चक्कर नहीं क्योंकि एक ही पावर है x की विच इज 4. सो लेट्स जस्ट गो अहेड विद दिस. ओके, x raised to power 4 टेकन कॉमन, 1 प्लस x raised to power minus 4. ठीक है जी, ये 3/4 मत भूलना. सो व्हेन दिस x raised to power 4 हैज टू बी टेकन आउट कॉमन, ये होल क्यूब है बच्चों तो x क्यूब बच जाएगा. तो ये x स्क्वायर एंड यहां से x क्यूब मेक्स इट x raised to power 5 एंड अंदर आई हैव दिस. ठीक है, कर दे इंटीग्रेट. वेरी गुड. I am already getting the responses. Is it Abhishek? Is it B? Anushka? Sorry, Anusha. Let's see, beta. So what will I? Obviously, I will put 1 plus x raised to power minus 4 as t. यार इतना तो नहीं भी steps show करोगे. It's absolutely धमाकेदार to understand. So क्या हो जाएगा I? This is my I. ठीक है जी. Am I missing out a minus? यहां पे क्या आएगा? -4 x raised to power -5. तो यहां से -1/4 आ रहा है. ओके, इंटीग्रेट करो एंड देन टेल मी. दिस विल बी -1/4 t raised to power -3/4 plus 1 upon -3/4 plus 1. ओके, सब्स्टिट्यूट और मुझे जल्दी से बताओ. इज एवरीवन गेटिंग B as the answer? आ रहा है सबका B? सो सबका अगर आंसर B आ रहा है तो यार हाउ कैन आई से यू गाइज आर रॉन्ग? यस अनुराधा, इट्स इजी पीजी. सो मजा आ रहा है ना? एंड आई एम श्योर दीज क्वेश्चंस आर कॉन्फिडेंस बूस्टर्स. सो स्टे कनेक्टेड विद मी बिकॉज आई विल कीप ब्रिंगिंग सच रिपीटेड क्वेश्चंस फ्रॉम एवरी चैप्टर. चलो लेट्स मूव टू क्वेश्चन 3. बिल्कुल सिमिलर सवाल एंड 2019 अगेन. सो 2016, द 19 अप्रैल शिफ्ट, जनवरी शिफ्ट. इट्स एक्चुअली सिंपल गाइज. अब चलो तो फिर ऑब्वियसली अगर ये इतने साल से रिपीट हो रहा है तो इट ऑटोमेटिकली कम्स इन द लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस. लेट्स स्टार्ट विद दिस. ओके बच्चों, लेट्स डू दिस बेटा. So once again, x raised to power 7 is the highest power. Let's do that. Let's take it. Let's take this common. So we are left with x raised to power -5 plus x raised to power -7 plus 2 and whole square मत भूलना. यार अब बार बार कैलकुलेशंस करके मुझे दिखाने की जरूरत नहीं because you've got the point, है ना? अब करते जाओ मेरे साथ सॉल्व. सो 5x ये आ जाएगा, राइट? सॉरी, ये x raised to power 14 बच्चों बाहर आएगा. सो व्हाट कम्स आउट इज x raised to power 14. ओके ओके गाइज, D, वेरी वेल डन यार. ऑल ऑफ यू आर गेटिंग D. चलो देखते हैं कैसे आ रहा है. तो ये आ जाएगा मेरा फिर से 5x - 6 प्लस 7x - 8 एंड ये हमको पता है. राइट? अब फिर से आई नो आई विल पुट दिस एज t. तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ऊपर? सी -5x एंड -7x raised to power -8 आएगा. तो यानी आई एम गेटिंग माइनस साइन कॉमन dt अपॉन t स्क्वायर. ठीक है जी. few of you are writing C also. बेटा, what is the final answer? What will I get now?
ये तो हो जाएगा आपका -2 + 1, डायरेक्टली लिख दूं तो ये आ जाएगा 1/t + c। अब क्या करना है, अब यहाँ पे नहीं छोड़ना, वाई, बिकॉज देर इज समथिंग एक्स्ट्रा टू इट। इफ आई एम गिवन f of 0 इज अ 0, तो मतलब यार ये जो आपका था ये fx था। सो माई fx दैट मीन्स इज टर्निंग आउट टू बी 1/x को देखो ध्यान से, वेयर इज माई t, ये रहा, it is 1/x raised to power 5 plus 1/x raised to power 7 plus 2 plus c। अब यार बच्चों गड़बड़ क्या होती है यहाँ पे, पहले जस्ट टेल मी व्हाट इज द आंसर फॉर c। जब आप x को पुट करते हो 0, देन व्हाट इज द वैल्यू फॉर c? आई वांट टू सी योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स। What is the answer for C? Swasti is the first one to tell me it's 0. Omkar, yes it's 0. अब बेटा हो कैसे रहा है? Yes भरत, it's 0. कैसे है? देखो most of you 0 नहीं लिखते, half लिख देते हो आंसर। कैसे? I will tell you now. This is the major गड़बड़। तो as you stay through the end of the session, मैं तुमको बीच बीच में जो गड़बड़ कर देते हो ना, that also I'll keep highlighting. So when I put x as 0, यार आप लोग ना इसको क्या करते हो इस फॉर्मेट में, सो यू सी ये दोनों 0 हो गए, बोल देते हो ये दोनों 0 हो गए, आंसर हाफ है। नहीं, यहां 0 है, 1/0 1/0, तो यानी इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी प्लस 2, तो 1/∞ क्या हो जाता है? 0। ठीक है, सबको इतनी बात समझ में आ गई? Yes, ये गड़बड़ होती है, मुझे पता है। So guys, make sure, I have been seeing students over the years making this mistake. तो प्लीज ऐसी छोटी छोटी गड़बड़ से बचो, रॉन्ग ऑप्शन मार्क कर दोगे। ओके, सो प्रथम, yes you are right, yes you are right, not defined, पर हम जो देखने की कोशिश कर रहे हैं 1/not defined भी बोलोगे बेटा तो आंसर 0 दोगे यहाँ पे, isn't it? So C is 0। देखते हैं आंसर इज 1/4 और नॉट। अब क्या करोगे, f of 1 निकालना है आपको। सो कैसे निकालेंगे हम f of 1? अब मुझे c पता है बच्चों, तो x की जगह मैं 1 पुट करूंगी, तो यार ऑब्वियसली दिख रहा है मुझे 1/4। अब मुझे बताओ, पैटर्न समझ लिया तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ केयरफुल यू आर इन योर कैलकुलेशंस। एंड फोड़ दिया क्वेश्चन तुमने, सो मेक श्योर यू गिव योर सेल्फ अ थम्स अप। हाँ जी, इट्स डी, एब्सोल्युटली राइट, परफेक्ट। तो यार इफ यू आर एंजॉइंग दिस सेशन तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन ऑन द वीडियो, बिकॉज दैट मोटिवेट्स मी ऑल्सो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4, अप्रैल शिफ्ट, 8 अप्रैल। चलिए लेट्स स्टार्ट विद दिस। Absolutely, absolutely विकास। अब if JEE Mains is giving these questions, तो फिर विश्वास करो JEE Mains पे, पैटर्न देखो बेटा। I am here with the series, बहुत रिसर्च करके हमारी टीम निकाल रही है ऐसे क्वेश्चंस, एक पैटर्न को ऑब्जर्व करके जो रिपीट हो रहे हैं ईयर आफ्टर ईयर। ओके, चलिए, वेरी वेल डन। अब शुरू करते हैं नेक्स्ट वाला। अब अगेन सेम पैटर्न है, यहां पे x fx है। ओके, सी मुझे पैटर्न दिख रहा है। अब आप बोलोगे यू कैन, आई मीन यू वांट टू डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, वो बहुत लंबा पड़ेगा बिकॉज यू विल बी स्टक विद f'(x). आई हैव सीन द पैटर्न ऑफ रैशनल फंक्शन, सो व्हाट शुड आई डू? आई शुड सिंपली अप्लाई द सेम लॉजिक। तो क्या आएगा यहाँ पे? अगेन x⁻⁶ आई विल टेक कॉमन, आई विल बी लेफ्ट विद ठीक है। What will I get now? Tell me what will come out. यहां भी बच्चे गड़बड़ करते हैं। Don't forget 2/3. It's good to see Abhishek, you've got your answer B. P. Ibrahim, I can see your answers. Shrestha, good guys, very good. But let's see एक बार उन लोगों के लिए भी जो थोड़े से confused है maybe. So let's do this.
So when I will do x raised to power 6 into 2 by 3, I'll get x raised to power 4 common. तो ये x raised to power 7 हो जाएगा and inside I'll be left with ये. ठीक है, everyone's understanding? Good to see this जोश बच्चों. I am so happy you are able to do this. फिर बस कुछ नहीं किया, सेम टेक्निक, इसको पुट कर दिया t, है ना, तो क्या आ जाएगा हमारे पास -6, तो क्या आ जाएगा -1/6 dt अपॉन t रेज़ टू पावर 2/3. ऑलराइट, इसको सिंप्लीफाई किया तो एक बार करके दिखा देती हूं, ये +1 + c, तो क्या हो रहा है यहां पे बच्चों, व्हाट आर वी गेटिंग, माइनस, ये क्या आएगा 1/3 ऊपर जाके -½ एंड यहां. नाउ डोंट जंप टू द आंसर, क्योंकि आपको fx एक्चुअली निकालना है, तो दैट मीन्स यू हैव टू कंपेयर द थिंग्स. सो नो वरीज गाइज, लेट्स डू इट. -½ t क्या है मेरा, ये वाला, इज इक्वल टू, इसके साथ कंपेयर करते हैं यार, दिस इज x, fx, बस अब आपको कंपेयर, यू जस्ट हैव टू कंपेयर दीज टू एंड देन यहां से fx निकालना है. तो क्या चीजें कंपेयर करोगे, देखो ये सेम आ रहा है, आपने इसको और ये चीज कंपेयर करनी है. निकालो आंसर, एवरीबडी इज गेटिंग बी. ओके, एवरीबडी इज गेटिंग इट. हाँ जी, बिल्कुल करेंगे अभिषेक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी करेंगे, बिल्कुल. तो एवरीवन सिंप्लीफाई करो बच्चों, कंपेयर करो. एक चीज में यहां गड़बड़ मत करना, आई शुड हाईलाइट अगेन फॉर द सेक ऑफ दोज जो मिस्टेक कर देते हैं बीच में. क्या हो रहा है यहाँ पे, व्हेन यू आर इक्वेटिंग यू आर गेटिंग -1/2, इसको मैं एलसीएम में लूं तो दिस इज 1 + x रेज़ टू पावर 6 एंड नीचे बच रहा है मेरा x², है ना, इज इक्वल टू x इंटू f(x) इंटू 1 + x रेज़ टू पावर 6 1/3. तो यार अब ये जो कंपेयर करके ना, ये x, ये देखो बच्चों, ये दोनों तो एक तरीके से कैंसिल हो गए, ये वाला x आपके डिनोमिनेटर में आ रहा है (fx). तो कई बार बच्चे इस ऑप्शन में क्या करते हैं, ये -1/2x² लगा देते हैं, भूल जाते हैं देयर इज एन x. सो एज आई एम सेइंग, स्टे टिल द एंड ऑफ द सेशन, क्योंकि मैं बीच में हाईलाइट करती रहूंगी व्हाट आर द मिस्टेक्स यू मेक विच लीड यू टू द रॉन्ग आंसर. ओके, ग्रेट गाइज. चलो लेट्स मूव आगे. आर वी रेडी फॉर क्वेश्चन 5? क्वेश्चन 5 के लिए रेडी है सब? तो यार यहां पे तो आंसर बी आ गया, वी ऑल नो. चलो लेट्स सी क्वेश्चन 5 नाउ. अब आ जाओ इस पे, लेट्स सी हाउ वी डू इट. सेम टेक्निक गाइस, सेम टेक्निक, क्योंकि आपको रैशनल फंक्शन दिख रहा है यहां पे, तो करें फिर से एक बार. Yes guys, are we able to understand? If you are able to understand, make sure you're hitting the like button. And जितने लोग यहाँ पे हैं who are just watching and not subscribing, you will miss out on lots of dose of JEE. तो better do that. चलो आ जाओ यहाँ पे. Same चीज. What will I do? यहाँ पे x² I'll take common. बिकॉज मैंने बताया यहाँ होल नंबर हो या कोई रेडिकल, रेडिकल मतलब रैशनल नंबर हो, जैसे यहाँ रेज़ टू पावर हाफ आ रहा है, जस्ट डू दैट. ठीक है, तो व्हेन आई टेक दिस आउट, क्या बाहर आ रहा है, x. तो बच्चों क्या हो गया, इसको मैं इंटीग्रल फॉर्मेट में लिखूं, ठीक है, पुट कर सकते हो एक बार ही. गुड टू सी गाइज. ए आ रहा है आंसर, यस, ए आ रहा है, सी आ रहा है. अभी देखते हैं कैसे आ रहा है. बेटा ये चीज फाइंड करनी है तो अभी धीरे चलना है, सिंप्लीफाई करके यार ax भी निकालना है और m भी निकालना है. सो जस्ट डोंट रश इनटू द थिंग. देखते हैं कैसे करें. सो ऑब्वियसली आई विल पुट दिस एज t. ठीक है जी,
तो what will I get? I will get minus 2 upon x cube dx is dt. अब बन गया हमारे बाएं हाथ का खेल, तो what will I get? I will get t raised to power half and यहाँ पे आएगा मेरा minus half dt. ओके, चलो लेट्स डू दिस. इजी है ना, मजा आ रहा है सबको? ओके, व्हाट विल आई गेट? व्हाट विल आई गेट बच्चों? ए आ रहा है सबका? मोहम्मद तौहीद, बिल्कुल बढ़िया. सो दैट मीन्स दिस वन बिकम्स -1/3. टी की जगह आई विल पुट 1 upon x square minus 1 up and raised to power 3/2. प्लस c को भूल जाते हैं यार, यहां से इक्वेट कर रही हूं मैं. क्या मुझे बताओ, मैं ये इस वाले एक्सप्रेशन को कैन आई राइट इट एज m/2? स्क्वायर रूट को हाफ लिखते हैं तो m/2 लिख दूं. वाई? क्योंकि कंपैरिजन बहुत इजी हो जाएगा. सो इफ यू सी फ्रॉम हियर बच्चों, ये देखो सेम फॉर्मेट है, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं. सो 1 minus x square raised to power 3/2 is equal to ax 1 minus x square raised to power m/2. एंड नीचे यहाँ x square है, लेकिन क्या बनेगा? x square raised to power 3/2, तो x क्यूब आ जाएगा. डोंट फॉरगेट दिस, ठीक है? यहाँ x क्यूब आ जाएगा. आर वी ऑल अंडरस्टैंडिंग गाइज? अब क्या है, अब कंपेयर करो m के लिए. ये देखो m/2 and 3/2, व्हेन यू कंपेयर योर m is 3, है ना जी? m is 3. विशाल बेटे, आई विल टेक दैट अप सेपरेटली, इट्स नॉट द पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. सो m is equal to 3 एंड यहां से इफ आई कंपेयर, सॉरी ये a of x है बेटा, दिस इज द a of x. सो a of x क्या हो जाएगा मेरा? -1/3x क्यूब. तो यार अब आपको ax भी पता है, m भी पता है, तो -1/3x क्यूब को रेज टू पावर 3 कर दो. क्या आ गया आपका आंसर? गुड. सो जिन लोगों ने भी ए आंसर दे दिया था, वेल डन गाइज. तो यार मुझे एक बारी बता दो, मजा आ रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है सेशन में तो डू हिट द लाइक बटन सो दैट आई कैन गो आगे एंड आई अंडरस्टैंड कि आपको समझ आ रहा है. चलो ओके गाइज, लेट्स सी. अब करोगे मेरे साथ? ये सबका आ गया ए. आपने आप में से कईयों ने पहले ही बता दिया था. चलो अब इसमें ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कोई पावर नहीं गिवन. ओके, फिर भी कुछ सोच सकते हो इसमें क्या करें? टेल मी अबाउट इट गाइज. टेल मी अबाउट इट. दिस डजंट फॉल एग्जैक्टली इनटू द कैटेगरी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन रैशनल फंक्शन है, तो इसको थोड़ा सा डिफरेंटली कैसे अप्रोच कर सकते हैं? चेतना बेटा, इफ यू सब्सटीट्यूट द डिनोमिनेटर आपको मिलेगा 4x क्यूब प्लस 1. ऊपर वो नहीं है, ऊपर वो नहीं है. टेक x क्यूब कॉमन, टेक x कॉमन, कुछ और सोचो गाइज. एक हिंट देती हूं, ये चीज तुम आप लोग अपने CBSE या ISC क्लास 12th में भी करते हो. जब x रेज़ टू पावर 4 की पावर आती है, x कॉमन लेके कोई ज्यादा फायदा हो नहीं रहा. वैसे यू कैन ट्राई डूइंग इट. शशांक इज द फर्स्ट वन टू टेल मी डिवाइड बाय x स्क्वायर. वेल डन शशांक. आइडिया कैसे आया ये आपको? आप जो बच्चे मुझे यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप पार्शियल फ्रैक्शंस लगाना चाहते हो, यू कैन ट्राई, बट यू विल एंड अप मीटिंग x इंटू एक्स क्यूब प्लस 1. तो फिर उसको और आगे सिंप्लीफाई करते जाओगे. सिंपल सी चीज यार, ये 4 है, बाय क्वाड्रेटिक है, डिवाइड ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर. ये जब x रेज टू पावर 4 आपके डिनोमिनेटर में आता है तो मोस्टली ये टेक्निक वर्क्स, दिस ट्रिक वर्क्स. तो क्या होगा? What will I get? My integral will become x square से डिवाइड करके 2x minus 1 upon x square and x square plus 1 by x.
आप बताओ क्या करोगे, आप बताइए। यस शैलेंद्र यू आर राइट, आप बताओ क्या करोगे मुझे। शशांक यू कैन ट्राई टेकिंग x, लेकिन डू यू रियली गेन एनीथिंग आउट ऑफ इट। ये देखो अब इफ यू पुट डिनोमिनेटर एज t, इसको पुट कर दो t, तो द डेरिवेटिव इज राइट ऑन द टॉप, आपके लिए बैठा हुआ है वहां पे। t पुट करोगे क्या आ जाएगा आंसर, dt by t। इफ आई पुट दिस एज t, क्या होता है x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x एंड 1/x का -1/x स्क्वायर, हो गया, बन गया क्वेश्चन हलवा। सो dt अपॉन t, तो log mod t होता है कि नहीं, तो ऑब्वियसली यार ये सब्स्टिट्यूट करके आंसर मैच कर लो। प्लीज टेक द LCM एंड टेल मी फाइनल आंसर। ग्रेट चेतना, लवली टू सी दैट। क्या आ रहा है मुझे सब बताओ, सब लोग बताओ क्या आंसर आ रहा है। सी कार्तिक बेटा चेक योर कैलकुलेशन अगेन। अब वही बात है, द कैलकुलेशंस आर सो क्लोज कि आपको लगता है यार कुछ भी आंसर है, तो इधर उधर जरा सी भी गड़बड़ की यू विल एंड अप मार्किंग द रॉन्ग आंसर। सो क्या हो रहा है यहाँ पे, दिस इज लॉग ऑफ एलसीएम लो x³ + 1 अपॉन x + c, मतलब इससे ज्यादा हलवा क्वेश्चन क्या होगा आपके जेईई मेंस में। गाइज वी हैव फोड़ोड द क्वेश्चन, 2019 डेड। यस, आर वी एंजॉयिंग? यस 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 एब्सोल्युटली। चलो फिर, आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन, दिस अमेजिंग सेशन। गाइज मजा आ रहा है ना, तो मेक श्योर लाइक जरूर करके जाना, ताकि मैं भी बहुत मोटिवेटेड फील करूं आगे के क्वेश्चंस के लिए, आगे के सेशंस के लिए। सो 7th क्वेश्चन के लिए आर वी रेडी? आर वी रेडी फॉर क्वेश्चन 7? चलो, आई कैन सी द थम्स अप, ग्रेट। ऑलराइट, तो मूविंग टू द सेकेंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस, यहां बढ़ते हैं। अब ये देखो यहां ट्रिगो आ गया है ना। आई गिव यू 10-15 सेकेंड टू सी, एक बार क्वेश्चन देखो एंड आई वॉन्ट टू सी कि व्हाट इज द फर्स्ट थॉट दैट कम्स इन योर माइंड। ओके, कम ऑन गाइज। देखो जब भी ऐसा भयंकर सा क्वेश्चन आए, पहले तो देखो यार, राइट साइड में आपको साइन और कॉस दिख रहा है एंड यहां सब टैन दिख रहा है, तो फर्स्ट थिंग इज साइन और कॉस इज ऑलवेज इजी, सो लेट्स डू दैट। पहले इसको साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करेंगे। मैंने बच्चों डायरेक्टली लिख दिया है, कैन आई डू दैट? इसको sin x बाय cos x लिखोगे, sin x बाय cos x लिखोगे, फिर LCM लोगे, फिर कैंसिल करोगे। जेईई मेंस का पेपर है यार, सीबीएसई का नहीं, इतने स्टेप्स दिखाने का नहीं, राइट? बिल्कुल। अब आप में से बहुत लोग जान गए हैं वो ट्रिक दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई, विच सेज डिफरेंशिएट टू इंटीग्रेट। ठीक है, हाँ जी बच्चों, देख सकते हो डिफरेंशिएट टू इंटीग्रेट, मतलब आप इसको याद कर सकते हो एज द DTI ट्रिक, डिफरेंशिएट टू इंटीग्रेट। तो क्या करने का है, राइट साइड को डिफरेंशिएट करने का है। क्यों? क्योंकि आई लाइक डिफरेंशिएशन मोर, है ना। सो व्हाट विल आई हैव, ये देखो, तो व्हेन आई डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, तो ये तो बच्चों आपका एज इट इज रहेगा। आप सच में बता रही हूं, क्वेश्चन बिल्कुल हलवा लगेगा। सो sin x - 2 cos x, ठीक है जी, इज इक्वल टू, यहां मैं डिफरेंशिएट कर रही हूं, दिस इज 1 प्लस a, ये लॉग है तो ये क्या आएगा 1 अपॉन sin x - 2 cos x। प्लीज यहां पे भूल मत जाना अपना चेन रूल, ठीक है। तो चेन रूल से क्या आएगा ऊपर, cos x प्लस 2 sin x, एंड ऑब्वियसली k तो कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0 है। ओके, गुड जॉब गाइज। अब क्या करें, कुछ नहीं करोगे यार, कंपेयर करोगे। क्या निकालना है आपको, a की वैल्यू निकालनी है,
तो वो तो अब आप निकाल लोगे, बहुत स्मार्ट हो, है ना। व्हाट विल आई डू, देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो डोंट वरी अबाउट द डिनोमिनेटर। यहाँ क्या आ जाएगा, अब मुझे पता है हैव टू कंपेयर साइन एक्स के टर्म्स, है ना। तो यहाँ से चलो एक बार लिख देती हूँ। वैसे मैं इतनी कैलकुलेशंस, आप भी एक बार प्रो हो जाओगे, डोंट शो सो मेनी कैलकुलेशंस। यहाँ एलसीएम लेके क्या आता है, साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस 2a साइन एक्स। अब मेरा a किसके पास है, साइन एक्स के पास है, सो आई एम गोइंग टू कंपेयर साइन एक्स की सारी टर्म्स। क्या आ जाएगा, 2a, यहां से आएगा 2a साइन एक्स इज इक्वल टू 4 साइन एक्स, तो क्या हो गया a। दैट्स इट। आ गया समझ, मजा आ गया कि नहीं। देखो ये गड़बड़ मत करना। अब देखो यही वाली छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं। फ्यू ऑफ यू आर राइटिंग द आंसर बी, -2 है, वहां माइनस साइन आपको कहां पर दिख रहा है बच्चों, दिस इज 4 साइन एक्स इज इक्वल टू 2a साइन एक्स। प्लीज बी नहीं है आंसर। अभिषेक बेटा ध्यान से देखो, यहां कहीं माइनस साइन हमें नहीं दिख रहा, सो आंसर इज ओनली डी। यस सोनिया, ओनली डी। बिल्कुल स्वस्ति, एब्सोल्युटली आई एग्री विद यू। चलो लेट्स गो आगे। तो देखो डी इज द आंसर, एब्सोल्युटली गाइज, नो वरीज। सो यही छोटी छोटी, दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टिक अराउंड विद माई सेशंस। क्यों, क्योंकि यार वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि हम गड़बड़ कर कहाँ रहे हैं, इजंट इट। सो चलो गाइज अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एंड यू हैव टू ट्रस्ट मी, एक बार इसे ध्यान से देख लो, ये आंसर भी हम 2 या 3 लाइंस में मैक्सिमम निकालने वाले हैं। आई एम टेलिंग यू, जस्ट गिव इट 10 सेकेंड्स टू रीड। ओके, सो इट्स जेईई मेंस 2015 का क्वेश्चन। तो एज आई एम सेइंग, repeated year after year after year. All right guys, okay, चलो क्या करें अब इसमें। मनोज जस्ट अटेंड द सेशन कामली, कुछ मिस हो गया है तो रीप्ले करके बाद में देख लेना, ट्रस्ट मी सिंपल लगेगा। अब यार ये दोनों तरह बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा तामझाम है। ओके, व्हाट कैन आई डू, सबसे बड़ी चीज करते हैं इसमें, एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं। नाउ फ्यू ऑफ यू माइट फील किया मैम डिफरेंशिएट कर दिया तो यहाँ g' क्रिएट हो जाएगा। डोंट वरी, मैं हूं ना, डोंट वरी, जस्ट डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। क्या आएगा यहाँ पे, ये तो टर्म एज इट इज आ रही है मेरे पास, इज इक्वल टू, यहां डिफरेंशिएट करोगे तो बच्चों हाफ इंटू 2gt इंटू g', और c का क्या है, c तो 0 है ना, c तो 0 है। अब मुझे बताओ, नाउ यू फील कि मैम आपने तो फंसा दिया, अब क्या करें आगे, है ना, अब क्या करें आगे। क्या मैं ध्यान से देख के अपना जेई वाला दिमाग लगा के कैन आई जस्ट सी कि यहाँ पे gt क्या है और g' क्या है। यार एक ही फंक्शन है बच्चों, देयर इज ओनली वन फंक्शन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी gt क्या है और g' क्या है। ये देखो, अगर मैं इस पूरे को gt ले लूं, ओके, अब इस पूरे को मैं gt ले लूं तो डू आई गेट g' एज दिस, देखते हैं। सी आई एम कॉन्फिडेंट, पर एक बार दिखाते हैं। तो इफ आई टेक gt टू बी log ऑफ t प्लस √1 प्लस टी स्क्वायर, ओके, सो g' मेरा क्या होता है बच्चों, व्हेन आई टेक द डेरिवेटिव, ये तो log का डिफरेंशिएशन है, यहाँ पे चेन रूल लगाओ, 1 प्लस हाफ ऑफ √1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 2, ठीक है। ये वाली यार डिफरेंशिएशन √1 प्लस टी स्क्वायर की, रादर दिस टर्म,
आप रियलाइज करोगे आपके सीबीएसई में भी और आपके जेई मेंस में भी ये फेवरेट फॉर्मेट है, बहुत बार आता है. ओके, सो व्हाट विल आई गेट? एलसीएम ले लो, आपकी बिल्कुल यही टर्म आ जाएगी. बच क्या जाएगा? दिस थिंग. ट्रस्ट मी गाइस, टेक द एलसीएम. ये डिनोमिनेटर और यहाँ का न्यूमरेटर विल गेट कैंसल्ड. 2t नहीं है बेटा, रूट ऑफ 1 प्लस टी. यस, यहाँ पे, हाँ जी, यहाँ पे कह रहे हो 2t है, बिल्कुल. थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट पवन, सजल. यस, थैंक यू संकेत. t लगा दिया है बेटा. अब एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा, यानी कि इफ आई लुक इनटू माय क्वेश्चन तो मेरे पास gt तो यार यही बन गया है ना, क्योंकि g' ये बन गया. तो अब मुझे क्या निकालना है बच्चों? आई हैड टू फाइंड आउट g of 2. आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, ये गड़बड़ हो गई है, बट आई विल राइट इट अगेन. t प्लस रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर. ओके, चलो, तो मेरा ये gt है यार, तो g of 2 के लिए अब कोई रॉकेट साइंस है नहीं, वैल्यू डालनी है, आंसर निकालना है. सबका निकल गया होगा अभी तक आंसर. बी इज द ऑप्शन. हाँ जी, सॉल्व हो गया. ट्रस्ट मी बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे. ये सब आई जस्ट डिड सो दैट यू अंडरस्टैंड. ओके, अदरवाइज कंपेयर करके यार इतने क्वेश्चन कर लेते हो इंटीग्रेशन के, आराम से पता चल जाता है कि ये जीटी ले सकती हो, ये इसका डेरिवेटिव है. सो मुझे बताओ, चंचल ऑसम है ना? ऑसम है तो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइबिंग एंड यू आर लाइकिंग द वीडियो सो दैट इवन आई फील ऑसम अबाउट इट. ओके, ready for the next question guys? आयुष बेटा, आई हैड डिस्कस. देखो, दो ही तो क्वेश्चन है, दो ही तो चीजें हैं, या तो लॉग ऑफ इसको लोगे जीटी या इसको लेके देखोगे. इतना तो आपको प्रैक्टिस से पता चल जाएगा. थैंक यू सो मच मनोज, थैंक यू बेटा. ओके बच्चों, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ. यस यस वस्ती, वी आर ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. आई एम ओनली डिस्कसिंग ऑल दोज थिंग्स बेटा, जो चीजें डिस्कस करनी बहुत जरूरी है आप लोगों के साथ. तो चलिए, 2014 का क्वेश्चन है, राइट? ट्राई गाइस, ट्राई. इजी है, इजी है बच्चों. यार मुझे अपना सजेशन लिखो चैट बॉक्स में. व्हाट डू यू वांट टू डू इन दिस क्वेश्चन? आई वांट टू नो, क्या सोच रहे हो, क्या थॉट आ रहा है दिमाग में इस क्वेश्चन को करने के लिए. कार्तिक है, कार्तिक बेटा, यू आर गिविंग मी द आंसर डी, बट थोड़ा लॉजिक बता दो. व्हाई आर यू गेटिंग द आंसर डी? कैन एनीबडी टेल मी, गिव मी अ लिटिल स्टार्टिंग पॉइंट फॉर दिस क्वेश्चन. कैसे करोगे इसको शुरू? देखो, यहां पे मैं अप्लाई करने वाली हूं. हाँ जी, यहां पे मैं अप्लाई करने वाली हूं. आप स्प्लिटिंग मेथड भी आपने देखा होगा साहिल, मैंने शैल मैंने भी किया है, लेकिन मैं दूसरा फंडू ट्रिक लगाने वाली हूं यहाँ पे. कोई बताएगा मुझे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी करने की जरूरत नहीं है. कैन समवन टेल मी व्हाट ऑसम थिंग आई कैन डू ओवर हियर? क्या कर सकती हूँ ऐसा जो क्वेश्चन फोड़ देगा मेरा? कोई सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं. मेरा DTI अप्रोच, व्हाट इज इट? डिफरेंशिएट टू इंटीग्रेट. बिल्कुल, आप ऑप्शंस को डिफरेंशिएट कीजिए. एब्सोल्युटली राइट मोहित. यस संगीता, ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करो. अब ऑप्शंस देखो, अब आप बोलोगे मैम विल आई डिफरेंशिएट ऑल द 4? नो. आप देखो, A और B बहुत सिमिलर हैं, उसी तरह C और D भी यार बहुत सिमिलर है, सिर्फ एक माइनस का फर्क है. सो आप A करोगे तो आपको पता चल जाएगा. अगर A नहीं आ रहा तो B भी उसी पैटर्न पे है. ओके, एंड इफ यू विल ट्राई C, अगर C भी नहीं हो रहा फिर तो D होना ही पड़ेगा. लॉजिकल है, एक बार समझाती हूं. देखो, इफ आई कंसिडर A, इसको डिफरेंशिएट करते हैं. ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है बच्चों.
इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूंगी तो यार प्रोडक्ट रूल लगाऊंगी, इसका डेरिवेटिव हो गया 1, दिस टर्म एज इट इज प्लस x प्लस 1, इसका क्या है, e का क्या डेरिवेटिव है, एज इट इज, लेकिन यहां पे मुझे लगाना पड़ेगा चेन रूल, तो ये 1/x है, माइनस 1/x² आ जाएगा। अब क्या होगा, आपका ये टर्म तो कॉमन आ गया, दिस टर्म इज कॉमन ऑफ कोर्स, हाँ जी, तो 1 प्लस x प्लस 1, एंड यहां पे इफ आई टेक द एलसीएम x² माइनस 1 अपॉन x²। यार अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके देखूं, आई एम नॉट गेटिंग द आंसर, क्योंकि बच्चों इसको अगर सिंप्लीफाई करो अंदर क्या बचता है, यहां पे आता है x प्लस x², ये देखो इसको सिंप्लीफाई करके क्या आता है, x प्लस x² माइनस 1 अपॉन x इंटू ये e वाली टर्म। तो यार ये तो मैं एलसीएम ले भी लूंगी बच्चों, तो यहां पे आपका ओपन करके ना x³ आ जाएगा, x³ आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा ए ऑप्शन नहीं है। सेम वे इफ यू गो बाय द सेम लॉजिक, अगर मैं यार यहाँ +1 की जगह, अब समझो इस बात को, मैं -1 कर दूं सारी जगह, तो यहाँ प्लस हो रहा है, कोई फर्क पड़ रहा है क्या, x³ तो मेरे पास फिर भी आ रहा है ना, तो दैट मीन्स b भी नहीं होने वाला। तो जस्ट डू इंटेलिजेंट वर्क, एक एक चीज मत करने बैठो, ओके। जय मैं अभी इस बात का जवाब दूंगी बेटा, जस्ट इन अनदर 2 मिनट्स। तो मतलब ए के एलिमिनेट होते ही यार लॉजिक से समझो क्या बी हो सकता है। अब आ जाओ सी के पास, चलो सी को करके देखो। यस गाइस, इफ यू विल ट्राई सी को यहां पे करके देखते हैं। तो यार ये वाला मेरा क्वेश्चन है सी। अब इसको देखो माइनस साइन मेरा बाहर आ रहा है, सो दिस इज अगेन अप्लाइंग द प्रोडक्ट रूल, माइनस आई हैव टेकन कॉमन बच्चों। ओके सो इसमें अप्लाई करूंगी मैं चेन रूल, सो आई विल गेट, नाउ व्हेन यू टेक द एलसीएम बेटा, व्हेन यू टेक द एलसीएम रादर, इसको भी मैं कॉमन ले लेती हूं, अंदर आई विल बी लेफ्ट विद 1 प्लस एक्स एंड यहां आ जाएगा x² एंड x² माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखो, आई विल गेट दिस टर्म बट विद एन एडिशनल माइनस साइन। D is the answer, ठीक है guys, are we understanding? Are we understanding कि नहीं? Make a note. Okay? So obviously D is the answer. अगर पहले ही थोड़ा सा हिंट लग गया है तो उल्टा भी करके डिफरेंशिएट कर सकते हो। ऑल दिस लॉजिक आपको आता है, ये जो अंदर से फीलिंग आती है ना यार कि D हो सकता है, CD में से कुछ हो सकता है, ये प्रैक्टिस से ही आती है। रेडी फॉर क्वेश्चन 10? चलो अब 10th क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। JEE मेंस 2018, यार ये वाला क्वेश्चन देख के ना आधे लोग बहुत डर जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से वैसे डर लगता है ना, बट एक्चुअली इफ यू सी इट वेरी केयरफुली, क्या हो रहा है यहाँ पे, आप डिनोमिनेटर पे फोकस करो, ठीक है। कुछ भी करना है थोड़ा बहुत तो आपको कुछ मॉडिफिकेशंस यहाँ से करनी पड़ती हैं, ऑलराइट। सो इसमें से बेटा आई कैन टेक, लाइक इफ आई फोकस ऑन द डिनोमिनेटर, सो न्यूमरेटर आई राइट एज इट इज। फॉर द डिनोमिनेटर आई कैन टेक sin² x कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट 2 टर्म्स, अंदर क्या बचेगा, sin³ x प्लस 1 प्लस cos³ x, एंड ये मैं बाकी के 2 टर्म से आई कैन टेक cos² x कॉमन,
बच्चों आई नो अ लॉट ऑफ यू कैन डायरेक्टली राइट दिस, सिर्फ उनके लिए करके दिखा रही हूँ जिनको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है डायरेक्ट लिखने का. सो आई विल गेट साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, एंड यहाँ पे बच्चों फैक्टर यू आर गेटिंग फैक्टर्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, एंड दिस इज साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स होल स्क्वायर. ठीक है जी, समझ आ रहा है सबको? ओके तो ऑब्वियसली बात है यार, ये तो टर्म उड़ गई, दिस टर्म हैज गॉन फुर. Why? Because sin square x plus cos square x is 1. So now I'm left with this to integrate. तो मुझे बताओ यार, what should I do for this? Yes, what should I do for this? यहां से यार ये sin और cos को, अब देखो ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस विल गिव यू द डायरेक्शन. नाउ मेरे ऑप्शन में ना यार सारा tan cot भरा हुआ है ना, तो इसको easiest है, I should change my question to tan. So yes, I can see divide by cos square x नहीं, even better divide with cos raised to power 4x. cos raised to power 4x के लिए करना पड़ेगा, तभी नीचे cos square x आएगा. तो ठीक है, करते हैं इसको. cos square x यहाँ, cos square x यहाँ, तो होल स्क्वायर के कारण यहाँ बन जाता है cos raised to power 4x. तो what's my new question here बच्चों? What's my new question now? साइंस यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, तो ऊपर आ गया मेरा tan स्क्वायर एक्स, एंड नीचे आ जाता है मेरा दिस इज क्यूब एक्स. सॉरी, यहाँ किससे डिवाइड करोगे? cos 4x से नहीं, cos रेज टू पावर 6x से. ओके, cos रेज टू पावर 6x से करोगे क्योंकि यहाँ cos क्यूब x जरूरी है. तो ऊपर क्या बचेगा? What will I get in the denominator, numerator? यहां मेरे पास बचता है आपका tan square x into sec square x, ठीक है, अपॉन what will I get here? 1 plus tan cube x whole square. This is my new question guys. ये है मेरा क्वेश्चन. ओके सबका ये वाला आ गया. अब भूल जाओ सारे क्वेश्चन को, हमने मॉडिफाई करके बच्चों हम यहां आ गए हैं. सॉरी अबाउट दिस, ये 6x से करना था. क्यों करना था 6x से? क्योंकि यहां होल क्यूब है ना, स्क्वायर नहीं है, होल क्यूब है. नाउ इट्स योर चॉइस, आपकी मर्जी है. अब आप अपने ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करके यू वांट टू गेट दिस आंसर, या फिर यहां पे tan x को रादर, हाँ जी, tan क्यूब x को पुट करके, ये पूरे टर्म को t पुट करके, एंड देन यू वांट टू गेट योर आंसर. बिल्कुल ईशान, यू कैन सब्सटीट्यूट द डिनोमिनेटर एज, सॉरी अबाउट दैट बच्चों. आंसर आई थिंक हमारा क्या आ गया था फाइनल, वो मैं लिख देती हूँ. वी गॉट tan स्क्वायर x इंटू सीकेंड स्क्वायर x, एंड नीचे आ गया था मेरा 1 प्लस tan क्यूब x होल स्क्वायर. ठीक है, तो इट्स योर चॉइस, आप इसको t पुट करना चाहते हो और यू वांट टू डिफरेंशिएट. जो भी करो यार, मुझे फाइनल आंसर चाहिए आपके कमेंट सेक्शन में इन दिस वीडियो, बिकॉज आई एम मेकिंग दिस क्वेश्चन एज लेट्स सॉल्व इट. ठीक है, लेट्स सॉल्व इट क्वेश्चन है आपका. जो मर्जी मेथड करो, यू डू डिफरेंशिएट, यू डिफरेंशिएट एंड गेट दिस आंसर, और यू पुट दिस टी एंड गेट दिस आंसर. जो लोग यहाँ पे कर रहे हो, ग्रेट गाइज, लेकिन मुझे इसका आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन में. सो मेक अ नोट. So those of you who are not on the Telegram group, make sure the link is given in the description box. Go join it. You can discuss your doubts, your queries. आपको सेशन की सारी डिटेल्स मिलती हैं. We share the schedule over there every day. So make sure you do that. If you enjoyed this video and आप चाहते हैं I should make more and more videos of this kind in this series, then you know you have to like, share and subscribe to Vedantu Math. ठीक है,
कम से कम हर बच्चा एक अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करेगा, इज़न्ट इट? चलो फिर, आई विल सी यू गाइज लेटर. तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच. बाय गाइज.